Now, here, in fact, we all know that a partner can retire from the business. Basically, when we try to describe something about retirement, a partner is leaving the existing partnership business. जब कभी भी कोई भी पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिटायरमेंट. Now, basically, when we describe something about this part, a partner may retire from the business, he will leave the business of the firm on account of various reasons. Well, some of the major reasons for that is continuous loss making business, disputes among the partner, and many other things. We need not go ahead for why he leaves the business. He leaves the business is most important point. तो अभी जब कभी भी कोई भी पार्टनर अभी जैसे ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स and they were sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. B retires. B retires. Therefore, A is to C is equal to 3:1. मतलब जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर उड़ा दो तो आपके पास जो बच गया दैट वुड बी द न्यू रेशियो. तो दिस वुड बी कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो, दिस वुड बी कॉल्ड एज न्यू रेशियो. Now remember over here, suppose A, I take up another example on further part. Suppose A, B, and C were equal partners. They got profit of 1200. How much A will get? 400. B will get 400. C will get 400. Now suppose C retires. Suppose C retires, A and B agree to share profits and losses equally. अभी उनको 1200 rupees profit हुआ. How much A will get now? 600. B will get 600. So if you observe, C के रिटायरमेंट के बाद में ए को 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, बी को 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिला. The partners get benefited in the profits after the retirement of existing partner. So this is benefit ratio, or we call it as gain ratio. This is new ratio, and this is before retirement old ratio. Remember, gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. Gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. Okay, so that is about the ratios part. Now we go ahead towards goodwill treatment. Goodwill treatment. Assets liabilities का revaluation of assets and liabilities will be there. तो यहाँ पे भी दो तरह से किया जा सकता है. कौन से दो तरह से किया जा सकता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, कोई बताएगा?
दो तरह से किया जा सकता है रिवैल्यूएशन, कोई बताएगा मुझको? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दो तरह से किया जा सकता है। वैल्यू changed in new balance sheet, value not changed in न्यू बैलेंस शीट। अगर न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज किया जाएगा, वेरी गुड नीताली, यू गिव द करेक्ट आंसर। अगर न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज किया जाएगा तो वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर नहीं चेंज किया जाएगा तो वी प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये दोनों कंसेप्ट आपको पता है, आई नीड नॉट डिस्कस। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दो पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो जो एक्चुअल इफेक्ट है वो फर्स्ट पार्ट में आएगा और उसके बाद में सेकेंड पार्ट में उसका एग्जैक्ट अपोजिट इफेक्ट दिया जाएगा। इज दैट ओके? डू यू वांट मी टू डिस्कस बोथ दिस कंसेप्ट मोर इन डिटेल्स? Revaluation and memorandum revaluation. Shall I discuss it more in details? We have already discussed it in admission of partner. अभी हम डिस्कस करेंगे गुडविल। इसके दो पार्ट करेंगे। ए, गुडविल appearing in old balance sheet. Goodwill appearing in old balance sheet. मतलब हमको जो ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस शीट दिया है, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल इज existing. Goodwill is appearing. Then, in that case, you have to consider that along with the value of goodwill in the balance sheet, you will also be given value of goodwill in the adjustments. So, इसके दो पार्ट रहेंगे। A, if new value is more than old value, मतलब आपको बैलेंस शीट में दिया है 24,000 फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में दिया है 24,000 एंड एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, तो न्यू वैल्यू इज मोर देन ओल्ड वैल्यू। तो इन दैट केस एसेट का वैल्यू बढ़ गया, 24,000 पहले था,
अभी हो गया 60,000, तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? कैन एनीबॉडी हेल्प? द वैल्यू ऑफ एसेट हैज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 36,000. The value has increased by rupees 36,000. Now, in that case, what we will do is, normally asset का वैल्यू जब बढ़ता है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं. बट रिमेंबर, गुडविल इज अ स्पेशल एसेट. हम उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में नहीं, कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल लिखेंगे. दैट मीन्स द एंट्री दैट वी आर पासिंग is goodwill account debited to old partners capital account. Just spare me a minute. और इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है? फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस भी क्लीन करने को बोलो उनको. हाँ, ठीक है. हम्म? हाँ हाँ, भेजो भेजो, बहुत गंदा इधर. So the other possibility is that the new value of goodwill, if new value is less than old value, new value is less than old value. अभी सपोज नया वैल्यू, ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है 60,000 एंड नया वैल्यू अपने को दिया है 24,000. तो द वैल्यू ऑफ एसेट हैज रिड्यूस्ड. तो नॉर्मली हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते हैं, बट इन दिस केस हम लोग पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में, मतलब उल्टा एंट्री हो जाएगा. ओल्ड पार्टनर्स capital account debited to goodwill account. Old partners capital account debited to goodwill account. So we pass up this entry. This is the first case where goodwill appears in the new balance sheet. अभी दूसरा पॉसिबिलिटी है कि गुडविल न्यू बैलेंस, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर अपीयर नहीं कर रहा है. So what do we do in that case? In that case, goodwill will always be given to us in adjustment. हमको एडजस्टमेंट में गुडविल दिया जाएगा. और यहाँ पे एक बात आप याद रखो, गुडविल विल नेवर बी brought or adjusted through cash. Goodwill will never be brought or adjusted through cash. मतलब in the case where retirement of partner is there, you should remember that goodwill shall always be raised. Goodwill shall always be raised. मतलब यहाँ पे गुडविल हमेशा रेज किया जाएगा. तो क्वेश्चन ये है कि हम उसको रेज करेंगे तो कौन से वैल्यू पे? तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे goodwill will always be raised. तो
वो रेज फुल वैल्यू पे हुआ है क्या रिटायरिंग पार्टनर के वैल्यू पे, ये हमको देखना पड़ता है। तो दिस सेकेंड मेथड गुडविल रेस वाला पार्ट हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें आपको ज्यादातर ये वाला ही एग्जांपल आएगा जहां पे हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दिया है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके, तो हियर आज मैं आपके साथ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाला हूं। बी वेरी अटेंटिव, बहुत ट्रिकी है। बहुत ट्रिकी है। दैट इज I am discussing about the concept called as joint life policy. Joint life policy. Now, सबसे पहले तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, यूजुअली जॉइंट लाइफ पॉलिसी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट में नहीं रहेगा ये कंसेप्ट रिमेंबर आपको। यहाँ पे रिटायरमेंट एंड डेथ अलग अलग चैप्टर नहीं है, यहाँ पे रिटायरमेंट एंड डेथ सेम चैप्टर है। They consider that as natural form of retirement. So joint life policy is very important. अभी क्या होता है कि suppose there are three partners A, B and C. कभी ये तीनों पार्टनर मिलके they may take up an insurance policy, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे तीनों का लाइफ का एक जॉइंट पॉलिसी रहेगा जिसका प्रीमियम फर्म पे करेगा। द प्रीमियम विल बी पेड बाय द फर्म। पॉलिसी निकाला है तो प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रीमियम कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। अभी क्या हो जाता है, इन तीनों में से कोई भी एक पार्टनर जब एक्सपायर होगा
तीनों में से कोई भी एक पार्टनर जब एक्सपायर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को इसके ऊपर उसका सम एश्योर्ड पे करना पड़ेगा. The insurance company will be required to pay the sum assured. Insurance निकाला है तो in case of life insurance है तो in case of death, insurance company will pay the money. और जब पार्टनर के पास ये पैसा आएगा, the partner will use this money to pay to the executor of the deceased partner. मैंने मोटर चालू किया हुआ है, किया हुआ है आधे घंटे पहले. तो आप ऑब्जर्व करना कि किसी के सपोज इसमें जब सी एक्सपायर हो गया तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड रहेगा, जितने का वो पॉलिसी रहेगा, वो फर्म को मिलेगा क्योंकि फर्म ने प्रीमियम पे किया था. अभी ए और बी जो है वो पैसा यूज करेंगे सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करने के लिए, क्योंकि इन केस ऑफ डेथ द मनी इज पेएबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द पार्टनर्स. तो डेफिनेटली उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने के लिए द फर्म विल रिक्वायर मनी and definitely that money will be available from the insurance company. Is the logic of joint life policy clear to all of you? अभी इसके अंदर दो मेथड है, मतलब अकाउंटिंग करने के दो मेथड है. ए, premium is treated as expense. Premium is treated as expense. अभी मैंने क्या बताया था, द इंश्योरेंस कंपनी विल मेक द पेमेंट ऑफ प्रीमियम. तो पॉसिबिलिटी है दैट द प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. ओके, तो अभी यहाँ पे सिंपल है, हमने प्रीमियम को एक्सपेंस करके किया. तो अभी इसमें दो एंट्री पास किया जाएगा. पहला एंट्री रहेगा प्रीमियम पेड, तो आई कैन से इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड. Insurance premium account debited to insurance premium account debited to बैंक अकाउंट. ये प्रीमियम हमने पे किया और फिर वही प्रीमियम हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. तो एंट्री रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. मतलब पहले पे किया फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया. हम बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस अप्रोच टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस. हम पहले प्रीमियम पे करेंगे, फिर उसको जो है पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे. इसमें
दूसरा मेथड भी है, मतलब दूसरा अप्रोच भी है, हम यही फॉलो करेंगे। सिंपल है, वी टेक आइदर ऑफ दैट अप्रोच है, अप्रोच 1, अप्रोच 2, हम अप्रोच 1 ही लेंगे। यहाँ पे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया। एग्जाम्पल लेते हैं। अप्रोच टू भी डिस्कस करूंगे, कर देते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम में रहेगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये क्या किया है। अप्रोच व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो इसके अंदर हम पहले दो एंट्री जैसा है वैसा ही पास करेंगे, पहले पे करो, और जब भी हम पे करेंगे तो एंट्री आएगा, अभी इधर दूसरा आ जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, दूसरा उसको पीएनएल में डालेंगे, मगर पीएनएल में क्या रहेगा एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, दिस आई कैन से पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं लिखेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल। और इसमें और दो एंट्रीज रहेगा, पहले प्रीमियम पे किया फिर उसको ट्रांसफर किया, मगर पेमेंट के वक्त में हमने उसको प्रीमियम पे डेबिट नहीं किया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में डेबिट किया है। और फिर हम ये जो है जितना भी प्रीमियम पे किया उतना हम लोग रिजर्व भी क्रिएट करेंगे, जितना हमने प्रीमियम पे किया उतना रिजर्व भी क्रिएट करेंगे। मतलब इसमें वापस से और एक एंट्री आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। मतलब आई कैन से रिजर्व क्रिएटेड। अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि उसका सरेंडर वैल्यू, तो डेफिनेटली सरेंडर वैल्यू क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एवरी पॉलिसी हैज सम सरेंडर वैल्यू, एवरी पॉलिसी विल हैव सम सरेंडर वैल्यू। मतलब अभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई सरेंडर वैल्यू क्या, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है ना आपको समझने के लिए। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू। अभी आप जब कभी भी पॉलिसी निकालते हो तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, वेन एवर यू टेक अप द पॉलिसी, आप उसके ऊपर क्या करते हो, यू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे उसका हेडिंग यह रहेगा, वी ट्रीट इट एज रिजर्व, वी क्रिएट रिजर्व्स। हम जब कभी भी इंश्योरेंस निकालते हैं तो हमको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, वी हैव टू पे द प्रीमियम, वी पे इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। अभी
Suppose yearly I pay 50,000 rupees as premium. तो आज मैंने 50,000 पे किया, सेकेंड ईयर भी 50,000 पे किया, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास मेरे पॉलिसी का कितना प्रीमियम जमा हो गया? 1 लाख। 1 लाख उनके पास है मेरा, बट थर्ड ईयर में मुझको ऐसा लगता है अरे भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं जाके बोलता हूँ कि भाई मेरा पॉलिसी आप वापस ले लो, आई कांट अफोर्ड टू पे द प्रीमियम। तो मैं जब इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना पॉलिसी सबमिट कर देता हूँ कि भाई अभी आई डोंट हैव एबिलिटी टू पे, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ पॉलिसी। उस वक्त में हमको जो अमाउंट पे किया जाएगा, दैट प्रोसेस व्हेन वी गिव इट बैक टू द इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ द पॉलिसी। एंड the insurance company is supposed to pay us some money to us, that would be called as surrender value। अभी यूजुअली सपोज पॉलिसी 10 साल का था, मैं 10 साल के पहले उसको एग्जिट कर देता हूं, देन दैट इज कॉल्ड सरेंडर। तो अभी जितने साल का प्रीमियम मैंने पे किया, अभी आपने एग्जांपल में मैंने बताया 2 साल का, यूजुअली सरेंडर 3 साल के बाद में होता है, इतना याद रखो। तभी आप एक सिंपल एग्जांपल बताओ कि अपने एग्जांपल में हमने कितना पे किया था, अपने एग्जांपल में हमने कितना पे किया था? 1 लाख। Do you think insurance company will give me the same money back? No। मतलब suppose insurance company says will pay you 80,000, so I can definitely say देखो हमने जितना प्रीमियम पे किया था वो तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में दिखेगा, समझ रहा है ना? 1 लाख रुपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट में दिखेगा अपने को। जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी शोन एज ₹1 लाख, कि जितना भी प्रीमियम पे किया उधर डेबिट हुआ है। तो पिछले साल का 50,000, इस साल का 50,000, 1 लाख दिखेगा। अगर सरेंडर वैल्यू 80,000 है तो देयर इज लॉस ऑफ 20,000, तो दैट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू रिजर्व। तो एंट्री आएगा JLP रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू JLP अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। जितना भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया ओवर द सरेंडर वैल्यू, अपने एग्जांपल में 20,000 का एंट्री आएगा इधर। आर यू गेटिंग दैट? अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। A, B and C are partners sharing profits and losses 2:2:1। Sharing profits and losses 2:2:1। They have taken
joint life policy for rupees 50,000. They have taken joint life policy for rupees 50,000. Be expired. Pass entries WRT. Do you know what do you mean by WRT? WRT का मतलब पता है किसी को? Very good. With respect to policy. Past journal entries with respect to policy. अभी देखो A, B and C are partners sharing profits and losses 2:2:1. They have taken joint life policy for 50,000. Remember, this is the policy value. This is the policy value and not premium. And not premium. अभी भी एक्सपायर हो गया तो डेफिनेटली मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कोई पार्टनर एक्सपायर होगा तब द कंपनी विल द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द सम एश्योर्ड, मतलब दे विल पे द सम एश्योर्ड. यहाँ पे सम एश्योर्ड था 50,000. तो पहले पैसा आया अपने पास, पार्टनर एक्सपायर हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव द मनी. तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू JLP अकाउंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा आया 50,000. 50,000 इज दैट ओके? पहला. और उसके बाद में हम लोग वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा सारे पार्टनर्स में बट जाएगा. मतलब इसमें एंट्री आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू A's capital to B's capital to C's capital. 50,000, and they are partners in the ratio of 2:2:1. 20,000, 20,000, 10,000. समझ रहे हैं? ये हो गया